नमस्कार दोस्तों। आज मैं पहली बार एक पॉडकास्ट लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे मिस्टिकल साइंसेस के बारे में, पिछले जन्म के बारे में, कर्मा के बारे में एंड सो ऑन। लेकिन उससे शुरू करने से पहले ये मैं ज़रूर सवाल आपसे पूछूंगी कि क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी से मिलने के बाद आपको लगा होगा कि आप पहले से पहचानते हो, या कोई ऐसे जगह में गए हो जहाँ पे लगा होगा हाँ ये जगह मैं पहले भी आई थी। वो डीजा वो फीलिंग होता है ना। तो मुझे तो कई बार हुआ है और इसीलिए मुझे लगा कि मैं जानने की कोशिश करूं कि क्या कर्मा, पास्ट लाइफ्स, ये सब होता क्या है। क्या ये सिर्फ मिथ है या सच में कुछ है एक ऐसे शख्स से जिसने एक बुक पढ़ के हमें ज्ञान देंगे कि क्या पास्ट लाइफ है, कर्मा क्या है, क्या ये कनेक्शंस होते हैं। तो मिलते हैं सौरभ सुमन से। जी नमस्कार। सो सौरभ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ बिफोर आई स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। करियर जो है इंजीनियर के तौर से शुरू किया लार्सन एंड टूब्रो में, फिर बहुत जगह काम किया। लास्ट मेरा प्रोफाइल था एज अ सीईओ इन वन ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज, और उसके बाद फिर मैं अपना काम किया। So in 2017, I decided that I should start my own job, my own work, and it was a destiny. I had never thought of it, never planned being in the corporate for nearly 26 years. I would start my own entrepreneurship. You cannot control your destiny. See, I always believe in one thing, that what has to happen will happen. अच्छा। But the effect which can be, what happens after that, the effect which happens can be altered by you. And that is what, in Bhagavad Gita also it says कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो. So the point is, if say for example, if a very good thing has to happen, it will happen. But that very good thing can turn into an excellent thing by your own actions, कर्मा, by your own karma. And that very good thing can become somewhat good thing by your own karma. So it will happen, the good thing is going to happen, but the degree of that good is determined by yourself. So that is something which we need to understand. Okay, so coming back, मुद्दे पे आते हैं. So while you've been on professional activities in your career, you've risen high in your career, but what is it that you believe in the past life, you believe in karma, you believe in these connections? So what is it that is today Saurabh Suman is talking about? Okay, so एक मेरा earlier video है in which I have talked about Mahakumbh. Yeah, you did. So in that Mahakumbh, I had said that people go, they think they will wash their sins, but when they come back, they again start from where they had, again go back to the same life, changing the way they should have done, because they would have gone to a spiritual place, and where the energies would have made them rise to a certain extent. Okay. So उसमें मैंने यही बोला था कि आप लोग वापस आए और फिर जो अच्छा आपने वहां किया है उसी को कंटिन्यू करें. So what happened to me is that when I came back, I was high on my energy levels, and the good thing is I started to meet certain people automatically who were of the same vibes. So when we were and you thrived. So in one of the discussions which came up, one of the persons said to read one book. So I was slightly skeptical. मैं थोड़ा सा I was not very sure. मैं बहुत sure नहीं था उस चीज का. So he said, read a book from Dr. Brian Weiss, which is Many Lives, Many Masters. This is the book which is okay. This was the book. Okay. And this has really changed my way of looking at the life. So he's a psychiatrist, right? He's a psychiatrist, yes.
And what does this book talk about? While he's a psychiatrist, how did he talk about these, many lives and many masters? So Dr. Brian Weiss, so he was a practicing psychiatrist, and what happened is that he never believed in these, rebirth. हम लोग हिंदी में बात करें ताकि हमारे ऑडियंसेस भी इससे कनेक्ट कर पाए. आई एम सो सॉरी. ओके. तो डॉक्टर ब्रायन वेस जो है वो रीइंकार्नेशन, रीबर्थ, अच्छा, पुनर्जन्म, पुराने जन्म, सोल के ऊपर कभी भी उन्होंने विश्वास नहीं किया. ओके. तो वो जो भी अपनी चिकित्सा करते थे वो कोशिश करते थे थ्रू, वो मेडिसिन के थ्रू करते थे. अच्छा, एलोपैथी. ही नेवर, वो कभी भी इस साइड पे कभी नहीं गए. सो एक दिन अचानक से क्या हुआ कि वन ऑफ उसी हॉस्पिटल की एक नर्स आई, एंड शी वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिप्रेशन. ओके. काफी फियर्स थे. शी वाज गोइंग थ्रू अ ट्रबल्ड लाइफ. ओके. तो इन्होंने कोशिश किया कि उनको मेडिसिन दें और उसको ठीक करें. बट डिस्पाइट 6 months ऑफ मेडिसिन, उसके ना फियर्स गए ना उसके ट्रबल्स गए. सो ऑल दोज थिंग्स एक्चुअली स्टार्टेड टू ट्रबल दिस जेंटलमैन डॉक्टर ब्रायन. ही सेड कि मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरा कोई भी पेशेंट मेडिसिन से ठीक हुआ है, व्हाई इज शी नॉट गेटिंग बेटर. सो एक दिन अचानक से इन्होंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा हिप्नोसिस करते हैं. अच्छा. सो व्हेन ही स्टार्टेड टू हिप्नोटाइज हिम, व्हाट हैपेंड इज दैट शी सडनली स्टार्टेड टॉकिंग समथिंग जो ना इस लाइफ में डॉक्टर ब्रायन को पता था, ना she had experienced it. And that was the aha moment, the turning point of Dr. Brian Weiss. So अगर इस किताब को मैं एक लाइन में समझाना चाहूं तो वो है, we are not human beings experiencing spiritual things. बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम इसको समझना. ये तो सर के ऊपर से चला गया. वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स. हम एक मनुष्य नहीं हैं जो एक स्पिरिचुअल प्रोसेस के थ्रू हम पास कर रहे हैं. Then what are we? हम एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं जो ह्यूमन प्रोसेस से गुजर रहे हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, अगर हम और आप बैठे हैं, वी आर सोल्स, वी आर स्पिरिट्स. We have been connected through something in our past lives. So अगर हम इस चीज को समझते हैं तो हम बहुत सारे चीजों को we will be able to understand it deeper कि why this has happened. The deeper meaning will come in. The deeper meaning will come in. Is there any scientific research associated to this hypnotism? Yes. There are a lot of scientific research which has happened. Unfortunately, as an Indian, हमारे पास बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं which talks about it, but हम उसको विश्वास नहीं करना चाहते हैं. मगर चूंकि ये वेस्ट से आ रहा है, we start saying कि अरे yes, this is correct, क्योंकि यहाँ पे एक scientific evidence है. So Dr. Brian Weiss has done lot of scientific evidences. He has put forward lots of evidences. उन्होंने करीब इसके बाद कैथरीन जो उनकी नर्स थी, जो पेशेंट थी, उसके बाद he has treated nearly 4,000 people through this process. Hypnotism? Hypnotic. Sure. यानी कि past life regression से. अच्छा. So you do a hypnosis and then you take the, आप उस पर्सन को एक पास्ट लाइफ की तरफ ले जाते हैं. तो पास्ट लाइफ का एक ही होता है कि सेवरल पास्ट लाइफ्स होते हैं? बिकॉज देन हिप्नोटिज्म तो होगा, बट हाउ डज द पर्सन और द डॉक्टर कम्स टू नो कि हाँ भाई पास्ट लाइफ में फैलाना पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने कई बार फिल्मों में देखा ये सब. सो वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत
सटीक क्वेश्चन है ये. हम्म, सो ये जो कैथरीन जो कैरेक्टर है, हाँ, शी हैज गॉन थ्रू 86 lives 86 lives. and she has recollected all those 86 lives. My But God. important point है, हम्म, you are not supposed to recollect all the lives, why? and that is something which again we will discuss in detail. हम्म, मैं आपको अभी बस ये बता रहा हूँ, she may have gone through maybe 200-300 lives, rebirths. but she's only mentioning 86. she can only recollect 86. Okay. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे many lives हो गया, there are many masters. अब मास्टर्स आप किसको कहते हैं? भगवान. हनुमान जी को आप मास्टर कह सकते हैं, है ना? आप भगवान को मास्टर कह सकते हैं. हम्म, So many times masters will not allow you to remember the other lives. उसका कारण है. हम्म, अब आपका आप समझो why are you having a rebirth? आपकी जन्म फिर से क्यों हो रही है? कर्मा करने के लिए. कर्मा करने के लिए. मगर कर्मा किस चीज के लिए करने के लिए? अच्छा. सो आपका एक डेट होता है, आपका कोई कर्ज होता है पुराने जन्म में, अच्छा, जो इस जन्म में. जो आपको फुलफिल करना है इस जन्म में. हम्म, सो दैट इज वाई आप जन्म फिर से लेते हैं. हम्म, अब आप हर लाइफ को क्यों नहीं याद कर सकते? क्योंकि वो जो डेट्स है वो खत्म हो चुका है. ओके. वो जो कर्ज था वो खत्म हो चुका है. आपको उसकी चिंता अब नहीं करनी है. आपको जो अभी तक आपकी कर्ज थी उस लाइफ को आप डेफिनेटली याद कर सकते हैं. हम्म, सो इस चीज में आप साइंटिफिक एविडेंस बात कर रहे थे. हम्म, इसमें एक ऐसे एविडेंसेस हैं हम्म, जो बच्चे या बड़े लोग जिनको कभी भी वो सपोज एक लैंग्वेज नहीं आती है, वो अचानक से वो लैंग्वेज बोलने लगते हैं. सो जो कैथरीन है, शी हैज बीन बोर्न इन इजिप्ट in a past life. इन हर पास्ट लाइफ. वो स्पेन में बड़ी हुई है, हम्म, वो फ्रांस में बड़ी हुई है. हम्म, हम्म, तो शी हैज गॉन थ्रू वेरियस लाइफ्स. हम्म, और किसी में वो सर्वेंट है, हम्म, किसी में शी इज अ वेरी वेल्दी लेडी, हम्म, किसी में शी हैज लॉट ऑफ ट्रबल इन टर्म्स ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स. तो I just want to cut you here and understand, जिसमें वो सर्वेंट थी और जिसमें वो वेल्दी लेडी थी, तो वो सर्वेंट ही क्यों बनी, वो वेल्दी लेडी ही क्यों बनी? इज इट पास्ट कर्मास दैट वो बहुत अच्छा कर्मा करी थी तो वेल्दी लेडी बन गई, एंड सर्वेंट और मेड बनी थी क्योंकि मे बी हर कर्मास वर नॉट सो गुड, और सम कनेक्शन डिड शी मेंशन इन द सो आपको बोला जाता है ना, आपकी वाणी और आपका जो बोलचाल का लहजा है और आपका जो एक्शन है, ठीक है, उसको बहुत सोच समझ के बोलिए. ठीक है, क्योंकि इसके वजह से भी आपको कोई ना कोई डेट आ सकता है. आपने सोचे किसी को डांट दिया, किसी को जो या थप्पड़ मार दिया, या आप उसके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आए, तो हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में इस चीज को सिर्फ करेक्ट करने के लिए आप वैसे बन जाए. तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई सामने से गलती करे और मैं उससे डांटू भी नहीं. गुड थिंग इज, आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपका नेक्स्ट लॉजिकल एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? वो लॉजिकल एक्सटेंशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग नहीं पढ़े हैं ओके. इंडिया में रहते हुए, और इंडियन वो हिंदी किताब है, वो किताब हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, वो है भगवत गीता. सो जो लॉजिकल एक्सटेंशन जो होता है, अगर आपको ये ऐसे तो हमें पहले भगवत गीता पढ़ना चाहिए, तो इस किताब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन हम लोग तो भगवत गीता ही नहीं पढ़ते. हम हमेशा वेस्ट को देखते हैं. हाँ. तो अगर आपने ये किताब पढ़ा है तो आपको भगवत गीता लॉजिकल एक्सटेंशन होना चाहिए. यू शुड रीड इट. अब उसमें क्या है,
उसमें सिंपल है कि अगर दूसरा कोई गलती कर रहा है तो यू आर नॉट सपोज टू बी द जज, यू आर नॉट सपोज टू बी द जज, देयर आर मास्टर्स हु आर जजिंग यू, हु आर वे बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन। उस चीज को आप समझ ही नहीं सकते हो अनटिल अनलेस आप लेवल्स में ऊपर उठना शुरू करो। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य बताता हूँ, और मोस्ट ऑफ द पीपल इस चीज को सुने होंगे अपने घर में। भगवान जो है 7 आसमान के ऊपर रहते हैं। वो 7 आसमान इज नॉट अ फिजिकल आसमान, ओके, स्पिरिचुअल प्लेन्स हैं। अच्छा, दोज आर स्पिरिचुअल प्लेन्स, एंड इसीलिए मैंने बोला कि यू आर नॉट सपोज टू जज। देयर आर persons, there are spiritual people who will judge what actions you have done. And what are those 7 spiritual planes? So those I will talk about first 2 because otherwise the rest 5 are too philosophical. It will go into a very different वो एक different angle में चला जाएगा। एक है जो first spiritual plane है, वो है resting। जब when there is a death of a person under the ground, patal lok mein? नहीं, it's Okay. not a patal lok. When you die, when a person dies, the soul gets liberated, right? When the soul gets liberated, it goes to a plane where it has to heal itself, जहाँ पे वो थोड़ा रेस्ट करता है। जितनी उसकी एनर्जीज गई हैं यहाँ आने पे, उस चीज को वो रिकलेक्ट करता है, उस एनर्जीज को वो फिर से गेन करता है। देन देयर इज अ सेकंड प्लेन फ्रॉम वेयर ही गोज टू द सेकंड प्लेन। वो ग्रेजुएशंस होते हैं, वो ग्रेजुएशन, हाँ, यू कैन नॉट जस्ट गो फ्रॉम दिस प्लेन टू स्ट्रेट अवे टू अ 7th प्लेन। ओके, सो एवरीवन वेदर इट वाज यू नो स्वामी विवेकानंद फॉर एग्जांपल, एनीवन, सो or a common man. throughout his life, throughout his the soul has traveled this, so से हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो आई एम श्योर उनकी जो सोल है वो सोल फर्स्ट प्लेन में गई होगी, फिर कोई और जन्म हुआ होगा उसमें वो सेकंड प्लेन पे गई होगी, देन ही वुड हैव गॉन टू द थर्ड प्लेन। सो ये जन्म से होता है प्लेन्स? नहीं, ओके, आपके कर्म से होता है ये प्लेन। हाँ, कर्म से ही, ये आपके कर्म से प्लेन होता है। सो से फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट प्लेन तो आप सबको जाना है, वहां रेस्ट किए। सेकेंड प्लेन पे जो मास्टर्स हैं वो डिसाइड करते हैं वेदर यू हैव टू गो बैक टू रीपे द डेट और यू विल गो टू द थर्ड प्लेन, द हायर प्लेन, द हायर प्लेन्स। वंस यू गो टू दैट प्लेन, सो दोज आर द 2 प्लेन्स which we will discuss. One is the rest, the second is the transition to go back. Oh, तब इसका मतलब ये कि you can go maximum to 2 planes in if you're coming back, मतलब आप second plane से ही आ गए थे वापस। You come back from the second. अच्छा, लेकिन हाँ अगर आप third plane में चले गए इसका मतलब ये कि when the masters, that means people, God, let's put it that as a master it will be God, ठीक है, ईश्वर, भगवान, ठीक है, when they decide कि no, this soul is ready to migrate to a third plane, then only you move to the third plane. And is that the third plane a moksha plane? No, the plane, the moksha is the 7th plane when you get yourself connected directly with the God. अच्छा, इसीलिए वो चक्रास भी इसी से connected है। When you meditate, you talk you about have 7 chakras ना? ऐसे तो बॉडी में उससे ज़्यादा चक्रास होते हैं, बट फॉर समवन लेमन लाइक अस, हम लोग के लिए वो 7 चक्रास हैं, है ना। माय नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही डीपर जा रहे हैं, व्हाइल वी आर गोइंग डीप आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या री इनकार्नेशन भी होता है और इमीडिएटली होता है आफ्टर डेथ? है, जैसे मैंने बोला, इट इज नॉट सपोज टू बी इमीडिएट एंड इट कैन ऑल्सो बी इमीडिएट। अच्छा, सो इमीडिएट एंड नॉट इमीडिएट का कहने का मतलब है व्हेन द सोल डिपार्ट्स द बॉडी, it goes to the first plane where it's the resting plane. Now, if your debt is very high, okay, you have to come back immediately. Okay. But if you have a relatively less debt, you know, then maybe
you can decide when do I go. Now इसी चीज में एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है which is called soul mates. अच्छा, आप बोलते हो ना ये तो मेरा सोलमेट है, राइट? ओके, हाँ, सोलमेट इज अ कंसेप्ट, इट्स कॉल्ड लाइक अ सोल ग्रुप. सोल्स भी एक ग्रुप में जन्म लेते हैं. अच्छा, सो द वेट. सो आपको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी डॉटर, they are all connected. So we are one big family of soul who decide to take rebirth. जैसे से फॉर आगे एग्जाम्पल पीछे, अगर एक एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन, एक एक्स सोल है और एक वाई सोल है, ठीक है? अब ये एक्स सोल का कुछ कर्ज है वाई सोल के ऊपर. ओके, नाउ दिस वाई सोल इज अ वेरी गुड सोल. तो इसकी रीइंकार्नेशन बहुत लेट से होगी, है ना? जैसे मैंने बोला कि इसकी डेथ बहुत कम है, तो इसकी रीइंकार्नेशन बहुत लेट से होगी. अगर इसकी रीइंकार्नेशन लेट से होगी तो ये एक्स जो है कैनॉट गेट रीइंकार्नेटेड इमीडिएटली. ही हैज टू वेट फॉर वाई. वाई जब वापस आया इस प्लेन पे, इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, then again he will also come, so that soul will come to create new karma, so that his debt against him gets nullified. So ये एक दो क्वेश्चन का जवाब है कि इमीडिएट, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई दूर का आदमी भी you get immediately connected. See, I'll tell you very simple examples and people would have experienced it. It is not ये किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है उनको. आपको बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो फर्स्ट टाइम में ही मिलते हैं and you get a connection. Wavelengths मिल जाते हैं. You immediately connect. That connect was not because ठीक है आपकी सोच सेम है. It was because that soul was supposed to meet you and he has already met you in previous life. या वो डीजा वू फीलिंग भी आ जाता है. एक डीजा वू फीलिंग आता है कि मैं यहाँ था, मैं इससे मिला था, कभी मैंने ये इससे बात की थी. So all those things, you know, subconsciously it is stored. See, conscious mind, अभी हम conscious mind में बात कर रहे हैं, but subconsciously when you start tapping that energy, जो बोलते हैं ना कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी क्या है? यही सबकॉन्शियस एनर्जी. इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी. अब आपकी तार किससे जुड़ रही है और कब बल्ब जल जाएगा, दैट इज समथिंग विच वन सोल एंड द अदर सोल कैन ओनली टेल. हाँ, तो मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि व्हेन आई थिंक ऑफ माय प्रीवियस लाइफ, फॉर एग्जांपल, कभी भी तो कुछ चीजें आ जाते हैं कि ओके, आई माइट हैव बीन दिस, आई माइट हैव बीन दैट एंड सो ऑन. व्हेन यू टॉक डीप विद इन योरसेल्फ, ये नहीं कि हाँ एवरीवन वांट्स टू बी अ क्वीन और यू नो अ बिग पॉलिटिशियन इन द प्रीवियस लाइफ, व्हिच आई डोंट सी माय सेल्फ. आई सी समथिंग एल्स एंड आई नाउ आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग. आ रही हूँ कि हाँ, if you meditate and if you think about it, you have those connections. And I have also seen कि एक पूरे भीड़ में, क्राउड में, you can only connect with 2-3 people. बहुत मतलब जबरदस्त कनेक्ट्स. बाकी के साथ एक हाई हेलो ही हो जाता है, लेकिन जबरदस्त कनेक्ट्स जो होते हैं वो एक दो लोगों के साथ सालों साल भी रहता है वो. So मैडम, आप you have gone to a prestigious university, UCLA. अच्छा, हाँ, yeah. I have also gone to Harvard. Just remembering, मुझे एक चीज याद आ रही है जो मेरे को प्रोफेसर ने बोला था. हमारा जो कोहर्ट था, यानी कि हमारा जो ग्रुप था, वो 80 लोगों का था. हमारा जो प्रोफेसर है, he said, you will never get connected to 80 people. All 80, agreed. You will only get connected to 1 or 2 people max. Very true. वो क्या था? वो exactly यही था कि आपका फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच किया,
पास्ट लाइफ का काम करके इस लाइफ का भी हम कर्मास को सुधार सकते हैं और सुधारते हैं। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आप पास्ट लाइफ के कर्मास को इस लाइफ में ले आके आप करे हो, या आपको महसूस हुआ है ऐसे? आफ्टर रीडिंग द बुक आई एम श्योर यू वुड हैव डन सम डीप थिंकिंग। See, मैं अपना तो नहीं बता सकता, बट डेफिनेटली इस कैथरीन का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओके। सो कैथरीन का एक फियर था। वो फियर क्या था? दो फियर थे उसके। अच्छा। पहला फियर था कि उसको कोई गला घोंट के उसको मार रहा है। नाइटमेयर्स आते थे उसको, और उसको कुछ समझ में नहीं आता था क्यों ऐसा हो रहा है। और दूसरा था, शी वॉज वेरी वेरी fearful of close and dark room। अच्छा। कोई डार्क रूम हो जाए, जैसे बहुत लोगों को नींद आती है एकदम क्लोज्ड हो और डार्क रूम हो तभी नींद आती है। शी कुड नॉट स्लीप, शी ऑलवेज यूज्ड टू वेक अप ऑलवेज कि ये क्या है। सो इन वन ऑफ द सेशंस व्हिच डॉक्टर ब्रायन वेस डिड विद कैथरीन, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, उसमें उसको ये दिखा कि कैथरीन वाज अ सोल्जर। सो सोल्जर, he was a soldier देयर in some place। ओके। ठीक है, in her past life। और वो सोल्जर लड़ाई कर रहा है और पीछे से किसी ने उसका गला काट दिया। ओके। And he dies। Okay, past life। Okay। And that is one of the reasons why she was very sensitive। फोबियाज जो होते हैं लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल कि सब बहुत लोगों को होता है कि ऊंचाई से फोबिया है, किसी को होता है वाटर से फोबिया। सो ये सब कनेक्शंस रहता है। क्यों डेवलप होता है? इट शुड नॉट डेवलप ना, क्योंकि आपने कभी ऐसा तो एक्सपीरियंस किया नहीं है। बिल्कुल। कि भाई आप कभी हाइट पे गए हो और आपको डर लगा हो, तो वो पहली बार ही आप गए होंगे ना, तो आपको डर लगा। बट क्यों डर लगा? सो देयर हैज टू बी सम कनेक्शन समवेयर। एंड द सेकंड वन वाज मोर इंटरेस्टिंग। सो इन दैट व्हाट हैपेंड इज कि शी वाज वेरी इल, और वो प्रोबेबली दैट वाज ग्रेट कॉलेरा व्हिच हैड हैपेंड इन यूरोप। ओके। ठीक है, उस समय की बात वो कर रही है। द वाटरबॉर्न डिजीज, दैट्स व्हाट शी इज सेइंग। इन हर पास्ट लाइफ In her की बात past कर life की रहे बात हैं। कर रही है। कोलेरा जो हाँ। डिजीज हुआ था। ओके। और ये जितने भी ऐसे लोग हैं उनको एक धीरे धीरे केव में शिफ्ट कर दिया जाता था, जिनको कॉलेरा होता हाँ। था। ओके। और अल्टीमेटली उसको बंद कर दिया जाता था वो केव को, डार्कनेस। so that they don't come out and spread more diseases to some other people। अच्छा। So वो उस चीज को याद करती है कि मेरे को भी ऐसा हुआ था and ultimately I died। You talked about, just podcast से पहले you talked about that Egypt, she was a maid Yes। in Egypt times, Yes, Sphinx yes, time। वो yes। थोड़ा highlight So कीजिए। she was a assistant to a high priest। High priest। हाँ। ओके। तो जो भी आफ्टर डेथ जो रिचुअल्स होते थे, embalming and all those things, she was part of that thing। Okay। So she was there। So that was a better life of hers। अच्छा। There has been more better lives of hers। Has been a owner of a castle and she had 2 beautiful children। Okay। So all those things she has described। And what important is how do we हम इस soulmate के कैसे connection करते हैं soul group की। तो उसकी जो एक past life में बेटी थी, वो आज उसकी सबसे closest friend है इस okay। life में। अच्छा। So she can relate immediately कि why she is my best friend। You know, so these things are very very interesting, quite intriguing। आपकी सोच को डीपन कर देता है। डीपन करता है, आपको और सोचने पे शुरू कर मजबूर देता है। करता है हाँ। कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। समथिंग is connected, so that energies are connected some way or the other।
And good part of when you read such type of books, आपको ये लगता है कि ठीक है, death is only a sequence. Okay. It is not the end. It is It's a journey. It's a journey. It is one of एक पड़ाव है. जैसे हम हर चीज का एक पड़ाव कहते हैं, सोल का एक पड़ाव होता है, क्योंकि उसके बाद इस बॉडी की उसको जरूरत नहीं होती है कर्मा करने के लिए, बिकॉज उसको फिर एक दूसरा कर्मा करना है, सो ही नीड्स अनदर बॉडी, एंड दैट इज हाउ थिंग्स गेट इंटरकनेक्टेड बिटवीन टुडेज लाइफ एंड पास्ट लाइफ, बिकॉज वो सोल सेम है, बॉडी अलग अलग है, जो आप हमेशा सुनते हो. गीता में कृष्ण जी यही कहते हैं. पॉडकास्ट तो घंटों चल सकता है, लेकिन लास्ट कुछ कहना चाहते हैं बिफोर क्लोजिंग दिस पॉडकास्ट एज टू आपके हिसाब से, आपने तो बुक के हिसाब से काफी कुछ बताया, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, इज इट रियली अ ट्रूथ? मेरे हिसाब से ठीक है. सो नाउ इट कैन बी डिबेटेड बिकॉज नो वन हैज सीन, बट इफ नो वन हैज सीन दैट डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट, यू नो. सो सोल को तो कोई नहीं देखा है. पास्ट लाइफ कुछ लोग एक्सपीरियंस किए हैं, कुछ लोग नहीं किए हैं, ठीक है. मेरा सिंपल सा कहना है, डोंट क्रिएट डेट्स इन योर लाइफ, ठीक है, सो दैट you move to higher planes. Those planes will give you much more liberation, will give you much more happiness than what you have ever experienced in this life. So बोला जाता है ना कि जब आप मेडिटेट करते हो तो you become very happy. बिल्कुल. So it is exactly that's what I'm saying. Don't create debts. Make yourself more happy, so that you move to a higher plane where you can meet the masters of this universe and create a much more bigger spiritual soul. Using this podcast, I am sure कि कुछ टेकअवेज तो है. तो पहला टेकअवे मेरे लिए था कि अगर आप इस जन्म में हैं तो अच्छा कर्म कीजिए, ताकि अगला जन्म या अगला प्लेन में जाने के लिए, आप हैप्पीनेस मिलने के लिए आप अच्छा कर्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे. अपने प्रेजेंट लाइफ को सुधारना चाहिए ताकि हम आगे हायर प्लेन्स में जाए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट एंड गिविंग अस सच हाई लेवल थॉट्स एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज योर सोल and why you are here in this world. Yeah. Thank you so Thank much. you. Thanks for a lot. coming. Thanks. Bye.